Hello students, welcome to social science class. Yes students, in our previous video we have started chapter 18 democracy and equality. In this we have read about democracy, our constitution, and why do we need our constitution. Now in this video we are going to read about the provisions that are given by the constitution. We have read in class 6th about equality. We have read that in democracy everyone is equal. It means all the persons, whether it is a man or a woman, a Hindu or a Muslim or any color, ठीक है, all are equal. There is no discrimination on the basis of caste, color, religion, region, language or gender. Okay. And our constitution has given us the universal adult franchise. That means right to vote. We all have right to vote. आपके पेरेंट्स भी वोटिंग करने जाते हैं, right? So all the persons, those are above 18 years, have right to vote. They can vote without any discrimination. Discrimination means भेदभाव, कि बिना discrimination के कोई भी person voting कर सकता है. There is no discrimination on the basis of caste, color, religion, region or language. One man, one vote. It was the most courageous step of the constitution framers, as most Indians were illiterate and poor at that time. Our constitution makers have given us one man, one vote. At that time there were rich people, there were kings, and that is the main reason our constitution framers, जिन्होंने हमारा constitution बनाया था, उन्होंने discrimination को ख़त्म करते हुए हर person को एक वोट दिया. ठीक है? It means whether it is a king or a common person or a illiterate or literate person, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, everyone has one vote. And it is the most courageous step, सबसे बड़ा courageous step था. Because at that time people were illiterate and poor. Okay? The people of India cast their vote and elect their representative for a fixed period. These representatives run the government according to the wish of the people. Okay, we have right to vote. तो what we will do with that right to vote? हम क्या करेंगे उस right का? What is the requirement of that right? This right gives us the power to elect our representative. ये जो राइट टू वोट है, ये हमें पावर देता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें. एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव वर्क फॉर अस. वो हमारे लिए वर्क करते हैं. ओके? दीज रिप्रेजेंटेटिव रन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल. हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग वोटिंग करता है, और जिस पर्सन को पसंद करता है, जिस पार्टी के कैंडिडेट को पसंद करता है, वर्किंग को पसंद करता है, उससे वो वोट देता है. ओके? और जो भी विन करता है इलेक्शन में, द पर्सन हु वन द इलेक्शन वर्क फॉर द पीपल. वो लोगों की भलाई के लिए, वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करता है. ओके? इफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव do not do so, people do not vote for them in the next election. अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा?
people do not vote for them in the next election. After 5 years there are elections, we all know that 5 years के बाद elections होते हैं. तो अगर गवर्नमेंट लोगों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी, उनकी विशेस को, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करेगी, तो आफ्टर 5 years जो इलेक्शन होंगे, पीपल डू नॉट वोट फॉर दैट गवर्नमेंट. लोग उस गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट के लोगों को दोबारा से वोट नहीं देंगे. पीपल ऑल्सो keep a close watch on the activities of their representative to guard their rights as guaranteed by the constitution. People जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत क्लोजली उसको वॉच करते हैं. ओके, कीप अ क्लोज वॉच, उनकी वर्किंग को देखते रहते हैं कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग प्रॉपर वर्क और नॉट, इज़ दिस वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और जस्ट फॉर द रिच पीपल. तो ये सब चीज़ें वो चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम. ओके, टू गार्ड देयर राइट्स, अपने राइट्स को गार्ड करने के लिए, अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए. ओके, दे कीप अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट और द रिप्रेजेंटेटिव. Okay, now just look in this cartoon. ये जो कार्टून बना हुआ है इसमें क्या है? After 5 years, a leader come to the farmer or a common person. अब 5 साल तक तो उसने लोगों को तंग किया, लोगों की बात नहीं मानी, और आफ्टर 5 years जब वो फिर से कॉमन पर्सन्स के पास आया तो अब वो क्या कह रहे हैं कि वी हैव वोट. अगर तुम्हारे पास पावर है तो हमारे पास वोट है, इस टाइम हम आपको वोट नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमारे विशेस फुलफिल नहीं किए हैं. ओके, द पॉलिटिशियन मेक्स प्रॉमिस टू lure the voter. The voter is confident of the power of his vote. Elections are the basis of equality. Many political parties participate in elections. Each political party is an organized group having its own policies and programs. अब जो political parties हैं, just like Congress और इनेलो और भारतीय जनता पार्टी, there are so many political parties in our country. Okay, and these political parties participate in elections to get the power. Okay, these parties are the organized groups. ये parties organized group होती हैं और इनके अपने अपने policies हैं, अपने अपने programs हैं for the development of the country, for the development of the people. Okay, तो party candidates are selected and supported by manpower and finances by political parties having a definite program that the general public is familiar with. Independent candidate. Now political parties को क्या है, उनके पास कैंडिडेट्स हैं और वो अपने कैंडिडेट्स को फुल्ली सपोर्ट करती हैं विद फाइनेंशियल हेल्प. उनको रैलीज करने के लिए और कहीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मनी की ज़रूरत है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ मनी प्रोवाइड करती हैं एंड मैन पावर भी प्रोवाइड करती हैं ताकि उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके. ओके, और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक प्रोग्राम है दैट द जनरल पब्लिक इज़ फैमिलियर विद, जिसके साथ जो पब्लिक है वो फैमिलियर होती है कि ये पार्टी अगर पावर में आएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो वो किस तरह से वर्क करेगी, उसका वर्किंग का तरीका क्या होगा. ओके, एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन देयर ऑन. बट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो किसी पार्टी के साथ इंगेज नहीं है, किसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो ही हैड टू मैनेज ऑल इट्स ऑन. उसे सब कुछ अपने ही आप करना पड़ता है. ठीक है, किसी के साथ बात करने जाना है तो भी अपने ही फाइनेंसेस, अपनी मनी को लगाना पड़ेगा. अगर रैलीज करनी है या कैंपेनिंग करनी है, भाषण देना है, तो वो सारा जितना भी वर्क है वो उसे खुद से अपने ही फाइनेंसेस के साथ, अपनी मनी के साथ करना पड़ेगा. ओके,
it is not an easy task for an independent candidate to contest election, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी बिग, दे हैव मैन पावर, दे हैव फाइनेंशियल पावर, तो किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए ये इजी नहीं है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को हरा सके. ओके, इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि देयर आर सो मैनी पार्टीज like BJP, Inhalo, Samajwadi Party, Indian National Congress and Akali Dal. There are so many parties. आम आदमी पार्टी. ओके, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, and the party or the combination of party that gets the majority forms the government. और जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. इट मीन्स जो पार्टी विन करती है, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, वो पार्टी ही जीतती है. ओके, द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और अ पर्सन whom the combination of party supports becomes the prime minister. जो इलेक्टेड पार्टी है, जिसको मेजोरिटी मिली है, उसका लीडर, ठीक है, वो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. अगर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, एक पार्टी को ज़्यादा वोटिंग नहीं मिली है, तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, एंड देन द लीडर ऑफ दोज पार्टीज बिकम द प्राइम मिनिस्टर. ओके, a party or combination of parties that fails to get majority of seats in the election perform the role of opposition. और जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है. तो the party that gets the majority became the form the government, and the party that did not get the majority forms the opposition. Just like today's government जो है, there is a government of BJP, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, and in the opposition there is Indian National Congress and other parties. ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की. इट मीन्स मेजोरिटी किसके पास है? इट इज इन द हैंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एंड द ऑपोजिशन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑपोजिशन पार्टी? चलिए, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है पार्टी, वो तो क्या कर रही है? वो वर्क कर रही है लोगों के लिए, ठीक है. वो लॉज बना रही है, या और अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होते हैं कंट्री में, तो वो सब वर्क कर रही है. बट ऑपोजिशन का क्या वर्क है? ऑपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. जो ऑपोजिशन है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. इट चेक्स द लॉज दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो लॉज बना रही है वो चेक करती है कि वेदर दीज लॉज आर इन द फेवर ऑफ पीपल और नॉट. ये लॉज लोगों के फेवर में हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए हैं या नहीं हैं. ओके, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? सो इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और द elections and multi-party system. Okay, so read these from your book also. That's it for today. Thank you and have a nice day.